Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 24. First of all, we will go through the previous lecture. We will see what we have done until now, and then we will continue. We did some functional variables. We were learning some functional types, and then we also learned tilde sign, which is which works like for not, but we can also say it says the meaning of it tilde was that there exists or until there is no this specific argument, then this rule will be continuously called. So this was tilde. We were using it for not having a lot of rules for where we don't know the situation and we don't know which kind of rules do we need to make for every situation. So that's why if we make a tilde sign, then it's a safe way not to go somewhere else, or the program should run and give us some guidance. And the example was if we want to have a menu, and in menu we want to keep in loop and not to go out from the menu, so we can keep this tilde sign and we can put there the value if that value is not there, so we can be inside the program. We can use a pipe sign, and we also learned it that if there is one value which exists, which compares and which matches, then the rule will be activated. And also the AND sign, which AND person works like if the value must be there, and we learn that AND person we can combine it with other values, with other signs, then it's working fine, because if we are using only AND person, then we even don't need it, because we just put the values there and the rule will compare it automatically, as we learn it that all the facts, if even they are different, but in our condition, in our if condition, if there is combinations of different facts, then it's already a AND sign, because until all the if conditions are not satisfied, the rule will not be activated. Then we also learned some basic arithmetics like plus, minus, and subtraction, this multiplication and division, and then we learn about taking some input from the keyboard. If you want to have something on runtime from keyboard, then how we will take it, and we learn that there is a function read, and we learn that this read function takes only one value, one symbol, and then we can use only that. And we learn that the rest of the values will not be put inside the read. And we also learned that when we are using read, then there is a question mark with the pointer, with the mouse pointer that we are using, and this means that we need to put something. Today we will learn some more functions, which is called read line function. We want to have multiple values, and we also want to keep space inside. And then we will learn assert string, if we want to assert a string instead of assert simple symbols or facts. And then we will also learn many functions. There are a lot of small functions that we need to know, and then we will conclude today's lecture. So now we will go further, and as we learned in the last lecture about read, so we will learn a little bit more, and we will see that there are a few problems for us in a case of read, because read cannot take multiple values. So how we can solve this? So we will learn it now. The read function is not a general purpose function that will read anything you type on a keyboard. On the keyboard, one limitation is that read will read only one field. So if you try to read
primary color is red, then only the first field primary will be read. To read all the input you must enclose in input within double quotes. हम अगर चाहते हैं कि कोई वैल्यूज़ आ जाएं, क्योंकि हम यहाँ पर ये सेंटेंस बता रहे हैं कि अगर हम ये देते हैं और हमारे पास रीड का फंक्शन कॉल हुआ है तो वो सिर्फ प्राइमरी को लेगा और जैसे स्पेस आएगी तो उसके बाद सारी वैल्यूज़ को डिस्कार्ड कर देगा। अब अगर हम चाहते हैं कि वो आ जाए, सारे के सारे वैल्यूज़ आ जाएं, तो इनको हम कोटेशंस के अंदर अगर करें तो वो हमारे पास एक सिंबल के फॉर्म में आ जाएगा, एक ही वैल्यू कंसिडर होगी फिर, लेकिन जाहिर है फिर वो एक कंसिडर होगी, हम उसको यूज़ करेंगे तो वो एज वन सिंबल यूज़ हो रहा होगा, हमें फिर उसको अलग करना पड़ेगा, ये स्पेसेस उसमें काउंट हो रही होंगी साथ। Of course, once the input is within double quotes, it is a single literal field. You can then access the substring primary, color is and read with the str explode और substring function। हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनको अगर हम यूज़ करें तो जब भी हम एक स्ट्रिंग लेंगे जो एक्चुअली एक सिंबल काउंट हो रहा होगा रीड के केस में, अगर हम ये पूरी सेंटेंस रखना चाह रहे हैं तो डबल कोट्स के अंदर ये एक काउंट होगा। इस वजह से हम करेंगे कि अगर हमने इसको इंडिविजुअल करना है तो हम उसके लिए दो फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप फर्दर स्टडी करें, आप मैनुअल को देखें, उसमें आपको ये फंक्शंस मिल जाएंगे, तो उसमें वो सारा प्रोसीजर बताया है कि किस तरह हम इनको कॉल करेंगे। सिंपल, बहुत इजी है, हमें साथ में स्पेसेस काउंट करने हैं और फिर हमें पता चल जाएगा कितने वैल्यूज़ हैं, उनको हर एक को कैसे अलग करना है। हमारे पास जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो है द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ रीड इज दैट यू कैन इनपुट parentheses unless they are within a double quote. Just as you can't insert affect containing parentheses, you can't read parentheses directly except as literals. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम कोई भी ले रहे हैं इनपुट तो उसमें हम parentheses नहीं लगा सकते। जब हम parentheses नहीं लगा सकते तो मतलब ये कि हम उसको एज स्ट्रिंग नहीं ले सकते। हम कोट्स के अंदर अगर हम पैरेंथेसिस कर लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन कोट्स के बाहर हम पैरेंथेसिस रीड के केस में यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास ये दो सिचुएशंस आ गई, एक तो हम स्पेसेस यूज़ नहीं कर सकते और दूसरा हम उसके अंदर पैरेंथेसिस यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका सोल्यूशन है रीड लाइन फंक्शन का। The read line function is used to read multiple values until terminated by a carriage return. This function reads in data as a string. अब हमारे पास read line function है, जिस तरह हमारे पास read simple था इस तरह read line है, और read line से यह होगा कि जब तक हम carriage return enter नहीं करते या हम जो कीबोर्ड पे enter की की है उसको enter नहीं करते, प्रेस नहीं करते, तब तक हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इनपुट होती रहेगी। इन ऑर्डर टू assert the read line data, and assert string function is used to assert the non-string facts just as input by read line. अब हम करेंगे क्या कि अगर हमने read line के थ्रू कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है फैक्ट लिस्ट में तो हमें फिर क्या करना होगा, हम assert string यूज़ करेंगे, ना कि हम सिंपल assert यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ये string आ रही है read line की वजह से, ये एज ए स्ट्रिंग सेव हो रहा है। तो अब इस स्ट्रिंग को जब हम फैक्ट के तौर पे लेकर जाएंगे तो हमें फिर उस वक्त सिंपल assert यूज़ नहीं कर सकते, हमें फिर दूसरा फंक्शन है उसको कॉल करेंगे और वो है assert string के नाम से, जो कीवर्ड है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। सिंपली क्या करेंगे हम, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं एज अ फैक्ट इस वैल्यू को रखना चाह रहा हूँ प्राइमरी कलर इज़ रेड। जब मैं इसको एज अ वेरिएबल अगर ले लूँ, फ़िलहाल हम इसको इसी तरह फिक्स रखते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या हम इसको जब इंटर करते हैं, सर्ट करते हैं तो हमारे पास
एक्चुअली क्या कौन सी वैल्यू आ रही होती है फैक्ट लिस्ट में। हमने कंसोल ओपन किया और अब हम सिंपल ये करना चाह रहे हैं कि हम एसर्ट करते हैं जो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू को हम इंसर्ट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। पर कैसे, और हमने ये बताया कि इसके लिए हम स्ट्रिंग कमांड यूज करेंगे, साथ में हमारे पास स्ट्रिंग भी आ रही है। अब स्ट्रिंग क्योंकि स्ट्रिंग है इस वजह से हम कोट्स के अंदर रखेंगे। हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, एक सेंटेंस, कलर इज रेड। अब हम स्ट्रिंग को क्लोज करेंगे। अब हमारे पास ये स्ट्रिंग आ गया, हम इसको इंटर करते हैं। जब हमने इंटर किया तो हमारे पास फैक्ट की फॉर्म में आ गया। अब ये कोट्स इससे निकल गए, जो दोनों कोट्स हमने दिए हुए थे, और हमारे पास एक फैक्ट की फॉर्म में ये आ गया। तो हम जब भी स्ट्रिंग को एसर्ट करेंगे तो हम करेंगे क्या कि हमें कोट्स यूज़ करने हैं, और उसके अंदर अगर हम ये ब्रैकेट्स लगाएंगे तो तब वो एज अ स्ट्रिंग इंसर्ट होगा। अब हम इसको ट्राई करते हैं तो हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग के लिए अगर हम कोई फैक्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो फैक्ट के लिए हमारे पास पैरेंथेसिस का होना ज़रूरी है, और इस केस में क्योंकि पैरेंथेसिस है नहीं तो वो हम इंसर्ट एज अ फैक्ट नहीं कर सकते। इसको क्लियर कर लेंगे और आगे हम जाएंगे। हम देखते हैं अब कि रीड लाइन को हम कैसे यूज़ करेंगे। Notice that the argument of assert string must be a string. The following shows how to assert fact of multiple fields from read line. हम आगे देखेंगे कि हम रीड लाइन को कैसे यूज़ करते हैं। अब रीड लाइन के लिए हम एक सिंपल सा रूल बनाते हैं। रूल में हम चाहते हैं कि जैसे हम रीसेट करें या हमारे पास कोई वैल्यू ना हो, कुछ भी ना हो, तो फंक्शन कॉल हो जाए। जैसे ही हम रन करें तो ये जो रूल है ये एक्टिवेट हो जाए, तो वो हम इफ़ कंडीशन में कुछ नहीं रखेंगे तो वो एम्प्टी स्पेस की वजह से कॉल हो जाएगा। और फिर क्या होगा, प्रिंट आउट टी इंटर इनपुट्स, जब हम इंटर इनपुट के लिए करेंगे और फिर बाइंड करेंगे रीड लाइन, हमने फंक्शन को कॉल किए, रीड लाइन से जो भी आएगा वो इस स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एसर्ट स्ट्रिंग करेंगे। लेकिन क्योंकि जब हम रीड लाइन ले रहे होंगे तो ये जो रीड लाइन है ये एक्चुअली हमारे पास इसमें पैरेंथेसिस नहीं होते, तो हमें फिर पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे अगर हम इसको एसर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए फिर हमारे पास स्ट्रिंग कंकेट के नाम से एक फंक्शन है, उसको हम कॉल करते हैं। और वो फंक्शन क्या करेगा कि वो जो स्ट्रिंग है उनको आपस में कनेक्ट कर देगा। जो भी हम उनमें वैल्यूज़ देंगे उन सबको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ले आएगा। तो यहाँ पर हम फिर इसको ये बताएंगे कि जो ये कोड्स के अंदर हम बताएंगे कि एक स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है, फिर जो स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ से आई होगी वो होगी, और फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है जो हमें ये बताएगा कि ये इसके दरमियान जो भी है वो एज अ फैक्ट ले लेगा। लेकिन ये जो फंक्शन है ये करेगा क्या, ये इनको आपस में कनेक्ट कर देगा, इन सबको जो भी इसके अंदर होगा। तो अब हम इसको सिंपली टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। हम रूल बनाते हैं, रूल हम बनाते हैं डिफ रूल। रीड लाइन कुछ भी कर लेते हैं हम, रीड टेस्ट के नाम से करते हैं हम। अब हमने क्योंकि इसको कॉल करना है डायरेक्टली, तो उसके लिए हम बगैर किसी इफ़ कंडीशन के करेंगे। और अब हम करेंगे ये कि हम यहाँ पर प्रिंट आउट करते हैं, प्रिंट आउट टी,
हमने ये बताया कि आप कोई वैल्यू इंटर करें। अब हम करते ये हैं कि हम बाइंड करते हैं। हमने कोई एस वैल्यू के नाम से जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो ले लेंगे। हमने वेरिएबल बनाया, फिर हम रीड लाइन करते हैं और सिंपली हम बाइंड को क्लोज कर देंगे। अब हम ये करते हैं कि हम सिंपली इसको प्रिंट आउट कर देते हैं साथ में, लेकिन हम पहले जो हम ये ट्राई करेंगे कि क्या अगर हम इसको एज अ फैक्ट रखना चाहें तो क्या ये होगा कि नहीं। तो हम फैक्ट रखने के लिए हमें assert, जो हमने अभी सीखा इससे पहले, स्ट्रिंग के नाम से करेंगे और साथ हम वो फंक्शन कॉल करेंगे जो कि कंबाइन करता है मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग में। ये हमने फंक्शन कॉल की। अब हम बताएंगे इसको कि कौन से वैल्यूज़ को साथ में कंबाइन करें, और अब हम बताएंगे यहाँ पर एस वैल्यू जो वेरिएबल है हमारा वो आ जाएगा, और इसके बाद हम जो दूसरा पैरेंथेसिस है वो बता देंगे कि इसको भी साथ में ऐड कर ले। और इसके बाद हम करेंगे ये कि हम रूल को, एक रूल जो कंबाइन करने का है उसको क्लोज कर लेंगे, फिर assert का क्लोज कर देंगे, और फिर हमारे पास जो डिफाइन रूल का है उसको क्लोज कर देंगे। हम इंटर करते हैं। हमने इंटर किया तो हमारे पास क्लिप्स आ गया जो टॉप लेवल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने सिंपल सा रूल बनाया। अब हम इसको रन करेंगे। जब हम रन करेंगे तो हमारे पास देखें कि एक आ गया है क्वेश्चन मार्क जो पॉइंटर है उसके साथ, और ये हमें ये बता रहा है कि हमें कोई वैल्यू एंटर करनी है। अब हम इंटर करते हैं। अब जब मैं कैरेज रिटर्न करूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट होने के साथ क्या हुआ कि एक तो जो मैंने इंटर किया था वो बता दिया कि ये एज अ क्लिप्स आ गया मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि मैंने कैरेज रिटर्न नहीं किया हुआ था, इस वजह से ये सारे एक लाइन में आ गए। अब हुआ ये कि ये एज अ फैक्ट मेरे पास फैक्ट लिस्ट में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर जो भी वैल्यू है उसको मैं एज अ स्ट्रिंग रखना चाह रहा हूँ तो वो मैं ले सकता हूँ यूज़र से रीड लाइन की कमांड के थ्रू। तो अब हम आगे जाएंगे और हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम assert स्ट्रिंग के और क्या फीचर्स हैं। Since assert string requires parentheses around the string to be asserted, the strcat function is used to put them around string variable. Both read and readline also can be used to read information from a file by specifying the local name of the file as an argument. For more information, see Clips reference manual. हम रीड और रीड लाइन को यूज़ कर सकते हैं किसी फाइल से रीडिंग के लिए भी, वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी, और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं और वहाँ से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, या वहाँ पर हम राइटिंग कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हम सीखेंगे तो ये हमारे लिए काम आएंगी कि अगर हम जो इनपुट हमारे पास आ रही है या आउटपुट आ रही है रूल्स के, हम उनको कैसे किसी फाइल में सेव कर सकते हैं, या अगर हम ये चाहते हैं हम कोई रूल्स बनाना चाहते हैं रन टाइम पे कि यूज़र हमें बताए
कि रूल का नाम क्या हो, रूल की इफ़ कंडीशन क्या हो, फिर हमें ये बताए कि एक्शन क्या होना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली उसी तरह का रूल बना ले, तो हम उसके लिए भी हम फाइल यूज़ कर सकते हैं। वो आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप जो क्लिप्स का रेफरेंस मैनुअल है उसको भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम जब डेली सिंपल प्रोग्रामिंग करेंगे और हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम जो बेसिक है हम उनकी समझ आ जाए तो बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी ड्यूरिंग आपके जहन में आए कि इस तरह कैसे होगा, तो आप सिंपली करेंगे क्या, कोई सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल रैंडम वैल्यू आप जनरेट करना चाहते हैं, जो हम सीखेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि अगर हम रैंडम वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं क्लिप्स के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या है। तो आप सिंपली रैंडम फंक्शन लिखकर साथ में क्लिप्स लिख दें गूगल में, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स उसके मिल जाएंगे और आपको उसकी हेल्प भी मिल जाएगी। और आपके पास क्लिप्स का रेफरेंस मैनुअल भी है, तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। The test conditional elements provides a very powerful way by which to compare numbers, variable and string on the left hand side. The test is used as a pattern on the left hand side. हम डिफरेंट कंडीशनल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और वो लेफ़्ट हैंड साइड पे हम चेक करने के लिए करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं हम आगे डिटेल में देखेंगे। A rule will only be triggered if the test is satisfied together with other patterns. हम रूल को तब एक्टिवेट करवाएंगे जब हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स मैच होंगे, जब बहुत सारे रूल्स सेटिस्फाई होंगे और वो इन कंडीशनल की बेसिस पे होंगे। Many predefined functions are provided by Clips as shown in the following table. हम देखते हैं कि बहुत सारे predefined functions हमारे पास अवेलेबल हैं क्लिप्स के अंदर, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं वो हमारे पास हैं। लॉजिकल में हम नॉट यूज़ करते हैं, जो एक्चुअली बूलियन नॉट का ही काम कर रहा होता है। अगर हम सिंपल नॉट लिख दें तो वो नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम एंड लिखते हैं तो वो बूलियन एंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अगर हम और लिखते हैं तो बूलियन और को रिप्रेजेंट करता है। और ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, तो ये हमें ऑलरेडी पता है, ये एग्जैक्टली उसी तरह काम करते हैं जिस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन है। फिर हमारे पास कंपैरिजन के हैं, उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं। ई क्यू इक्वल से लिया गया है, इनको करते क्या है, एनी टाइप कंपैरिजन, टाइप कंपैरिजन और मैग्नीट्यूड, हम बहुत सारे दो काम इसमें कर सकते हैं। जब हम टाइप को चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एक टाइप के हैं कि नहीं, इसकी छोटे से एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। और नॉट इक्वल टू, जो इक्वलिटी को, जो इक्वलिटी ना हो उनको चेक करने के लिए है। और फिर जो इक्वल का साइन है तो वो यूज़ होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए। फिर हमारे पास और हैं जो नॉट इक्वल का साइन है, जो एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉट इक्वल है ये हम किसी भी टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके। लेकिन जो ये वाला है ये सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए है, जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, ये भी हमारे पास सिंपली न्यूमेरिक्स के लिए यूज़ होता है। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और लेस देन, तो ये सारे जितने भी साइंस हैं हम इनको यूज़ करते हैं और ये एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहेंगे जिस तरह हमारे पास जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है उसमें हम यूज़ करते हैं। सी हो गया, C++ हो गए। All the comparison function except equal and not equal will give an error message if they are used to compare a number and non-number. हम यहाँ पर बेसिक ये बात बताना है कि जब हम कोई भी ऑपरेशन इसमें यूज़ करेंगे, कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास एरर का मैसेज देगा अगर तो उसमें कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर हम न्यूमेरिक की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो फिर तो ठीक होगा, लेकिन नॉन न्यूमेरिक वैल्यू के केस में
एक्सेप्ट इक्वल और नॉन इक्वल के फंक्शंस को निकाल कर बाकी जितने भी हैं वो हमें एरर मैसेज देगा. इफ द टाइप इज नॉट नोन इन एडवांस द इक्वल एंड नॉन इक्वल फंक्शन शुड बी यूज्ड. अगर हमें ये नहीं पता कि जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है, तो अगर टाइप का नहीं पता तो हम उस सिचुएशन में फिर ये जो फंक्शंस हैं क्लिप्स के यूनिक फंक्शन, इनको हम यूज़ करेंगे. द इक्वल फंक्शन चेक फॉर द सेम मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ इट्स आर्गूमेंट्स. हम ये देखते हैं कि जो इक्वल फंक्शन है वो मैग्नीट्यूड को चेक करता है और सेम टाइप को भी साथ में चेक करता है, और अगर टाइप डिफरेंट हो तो भी बता देता है. while the equal sign function only check the magnitude of its numeric arguments and does not care if they are integer or floating points. और यहाँ पर जो इक्वल साइन हम यूज़ करते हैं तो वो सिंपली नंबर्स के मैग्नीट्यूड को देखता है, ना कि उनके टाइप को, कि इनके टाइप डिफरेंट है कि नहीं. तो अगर तो डिफरेंट होंगे और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो ज़ाहिर है वो तो पहले एरर ही देगा, लेकिन अगर वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो फिर उसके टाइप को चेक नहीं करता. लॉजिकल वैल्यूज़ हैं फिर. द लॉजिकल फंक्शन ऑफ क्लिप्स आर एंड, और एंड नॉट. They can be used in expression as Boolean function, and clips true and false are represented by the symbol true capital and false capital. Note that uppercase must be used for logical values in clips. हाँ, हमारे पास जो and है और है लॉजिकल वैल्यूज जो है और नॉट है, इन तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्टली जिस तरह ये हैं, और ये हमें रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स कैपिटल अपर केस में, और उनको हम यूज़ कर सकते हैं. अब हमारे पास आ जाता है, थोड़ा सा हम इसके डिटेल में जाते हैं, चंद एक चीज़ें देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए एग्जैक्टली. द इक्वल फंक्शन रिटर्न्स द सिंबल ट्रू इफ इट्स फर्स्ट आर्गुमेंट इज इक्वल इन वैल्यू टू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट आर्गुमेंट. अदरवाइज it returns the symbol false. Note that equal compares types as well as values. Thus 3 equal 3 and 3.0, which is actually float point, is false since 3 is an integer and 3.0 is a float value. हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम equal function को कॉल करेंगे EQ के नाम से, तो वो इक्वलिटी चेक करेगा, ना सिर्फ के उसकी वैल्यूज़ की मैग्नीट्यूड की, बल्कि वो साथ में उसका टाइप भी चेक करेगा. तो हमने यहाँ पर देखा कि ये एक छोटी सी एग्जांपल है. अगर हम इसको चेक करें कि 3 और 3.0 इक्वल हैं कि नहीं, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि 3 इंटीजर वैल्यू है और 3.0 फ्लोटिंग पॉइंट है. चूँकि इनका टाइप डिफरेंट है और इक्वल हमें टाइप का डिफरेंस भी बताता है. द नॉट इक्वल फंक्शन रिटर्न्स द सिंबल ट्रू if its first argument is not equal in value to all its subsequent arguments. Otherwise, it returns the symbol false. Note that the not equal compares types as well as values. Thus, not equal 3.0 is true since 3 is an integer and 3.0 is a float. यहाँ पर सिंपल बात यह है कि जो नॉट इक्वल चेक करेगा कि जब वो इक्वल नहीं होते, और साथ में वो उसके वैल्यू उसके टाइप को भी चेक करेगा. तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है दोनों, इस वजह से हमारे पास रिटर्न होगा ट्रू. अब हम कुछ और फंक्शंस देखेंगे. द इक्वल साइन फंक्शन रिटर्न्स द सिंबल ट्रू इफ इट्स फर्स्ट आर्गुमेंट इज इक्वल इन वैल्यू टू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट आर्गुमेंट्स. Otherwise, it returns the symbol false. Note that equal compares only numeric values and will convert integer to floats when necessary for comparison. हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो equal sign है वो actually simple values के magnitude को चेक करता है कि
क्या वो अगर कोई वैल्यू 3 है और दूसरी वैल्यू 3 है तो वो इक्वल करेगा, उनको बताएगा कि इक्वल है। अगर तो कोई वैल्यू 3 है और दूसरी वैल्यू 3.0 है तो भी वो उसको इक्वल ही बताएगा, और वो दोनों को या तो फ्लोट कर देगा या इंटीजर कर देगा। नॉर्मली फ्लोट कर देता है, कोई भी वैल्यू हो, अगर इंटीजर और फ्लोट को कंपेयर करना हो तो वो जो इंटीजर वैल्यू है उसको भी फ्लोट करके चेक करता है। The not function returns the symbol true if its first argument is not equal in value to all its subsequent arguments. Otherwise, it returns the symbol false. Note that not compares only numeric values and will convert integer to floats when necessary for comparison. Not जो हम यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअली लेस देन और ग्रेटर देन साइन है। अब ये एक्चुअली क्या करेगा, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कंपेयर करता है आपस में। अब कंपैरिजन किस तरह है, वो नॉट के केस में देखता है। तो नॉट के केस में इस तरह कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं फंक्शन में तो इसके साथ जो वैल्यू होगी उसको कंपेयर करेगा बाकी सब वैल्यूज़ के साथ कि क्या वो उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, नॉट इक्वल के केस में। तो अगर तो मैच नहीं हो रहा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर तो वो मैच करता है तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास एक और फंक्शन जो हमने देखा वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। द फंक्शन रिटर्न्स द सिंबल ट्रू इफ फॉर ऑल इट्स आर्गुमेंट्स argument n-1 is greater than or equal to argument n. Otherwise, it returns the symbol false. Note that greater than and equal to sign compares only numeric values and will convert integer to float when necessary for comparison. अब greater than और equal to sign जो है वो भी सेम इसी तरह काम करेगा। इसके अगर दो आर्गुमेंट हैं तो सिंपल करेगा ये कि जो इसके साथ एडजेसेंट होगा उसको चेक करेगा कि वो ग्रेटर देन और इक्वल है क्योंकि हमने देखा था कि ये प्रीफिक्स फॉर्म में होता है, इस वजह से जब हम ये साइन यूज़ करेंगे तो प्रीफिक्स होगा। तो जो इसके साथ एडजेसेंट वैल्यू होगी उसको चेक करेगा, उसके साथ जो दूसरी वैल्यू है उसके साथ कि क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल है कि नहीं, और फिर इसी तरह कंटिन्यू होता जाएगा और जितने भी उसके साथ वैल्यूज़ होंगे तो उस एक वैल्यू को कंपेयर करेगा सबके साथ। और ये क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ करेगा तो इस वजह से अगर कोई वैल्यूज़ इंटीजर और फ्लोटिंग है तो वो कन्वर्ट कर देता है इंटीजर को फ्लोट्स में। द लेस देन फंक्शन रिटर्न्स द सिंबल ट्रू इफ फॉर ऑल इट्स आर्गुमेंट 9n-1 is less than argument n. Otherwise, it returns the symbol false. Note that less than compares only numeric values and will convert integer to float when necessary for comparison. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो less than का साइन है वो एक्चुअली सेम उसी तरह काम करेगा, उसके साथ एडजेसेंट वैल्यू जो होगी उसको चेक करेगा कि उसके साथ जो बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं पहले को छोड़कर तो उन सब के साथ कंपेयर करेगा और फिर देखेगा कि क्या वो लेस देन है कि नहीं। द लेस देन एंड इक्वल टू फंक्शन रिटर्न्स द सिंबल ट्रू इफ फॉर ऑल इट्स आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट n-1 इज लेस देन और इक्वल टू आर्गुमेंट n, अदरवाइज इट रिटर्न्स सिंबल फॉल्स। और सेम इस तरह ये भी है कि ये लेस देन और इक्वल टू साइन जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला काम करेगा जो हम से पहले हैं कि जो प्री ऑर्डर में है, इस वजह से प्री ऑर्डर के केस में जो उसके साथ एडजेसेंट होगा उसको कंपेयर करेगा बाकी सब के साथ। अब हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं। द नम ये नंबर के उससे है और RP साथ लगा हुआ है। ये एक्चुअली करता क्या है, फंक्शन रिटर्न्स द सिंबल ट्रू इफ इट्स आर्गुमेंट is a float or integer, otherwise it returns the symbol false। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये नंबर है कि नहीं, नंबर
एक्चुअली पी करता क्या है, पी एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट आउट कर रहा होता है पूरे के पूरे आर्गुमेंट को, पूरे वैल्यू को। तो ये फंक्शन है, लेकिन हमें इसके डिटेल में नहीं जाना कि ये काम किस तरह कर रहा है। हमें सिंपल ये देखना है कि हम इसको अगर कॉल करते हैं और साथ में हम आर्गुमेंट देते हैं तो वो हमें ये बताएगा कि क्या ये इंटीजर है कि नहीं। रिटर्न द सिंबल ट्रू इफ इट्स आर्गुमेंट इज फ्लोट और इंटीजर। फ्लोट और इंटीजर दोनों के केस में काम करेगा, और अगर तो इंटीजर और फ्लोट नहीं है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हम मुख्तलिफ चेक्स लगाने के लिए करेंगे, यूज़ कर सकते हैं कि हम कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं जो स्पेसिफिक हो नंबर के केस में, तो हम ये चेक लगा सकते हैं। द फ्लोट p function returns the symbol true if its argument is a float, otherwise it returns symbol false। अब हमारे पास सिंपल फ्लोट p का भी एक फंक्शन है जो सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट्स को देख रहा होता है, और ये हमने देखा है आल्सो कि हम ये जो फंक्शंस हैं इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो ये इस वजह से यूनिक है कि हम नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल फैक्ट्स को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशंस भी हैं। हम साथ ही कंडीशंस लगा सकते हैं और उसको चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो रिज़ल्ट ठीक है कि नहीं। तो जब ठीक होंगे तो तब हम आगे रूल को एक्टिवेट करवाएंगे। द इंटीजर p भी सेम इसी तरह ही है, इंटीजर पॉइंटर है ये, और ये भी हमारे पास ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। फिर स्ट्रिंग p के नाम से भी है, फंक्शन रिटर्न्स द सिंबल ट्रू इफ इट्स आर्गुमेंट इज अ स्ट्रिंग। अगर तो वो स्ट्रिंग है तो वो हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स अ सिंबल फॉल्स, वरना तो वो हमारे पास फॉल्स सिंबल रिटर्न करेगा। अब हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं। द इवन, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई इवन वैल्यू है या नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन अवेलेबल हैं क्लिप्स के अंदर। मैंने आपको बताया कि हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं क्लिप्स के अंदर और फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन हैं, तो हमें बहुत कम यूज़ करने होंगे। हमें सिंपली जो लॉजिक है उसके बिहाइंड वो मोस्टली यूज़ करना है, लेकिन जो प्रोग्राम बनाने के लिए, लेकिन जो उसके लिए फंक्शंस चाहिए होंगे वो मोस्टली अवेलेबल हैं, हमें ख़ुद से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस केस में अगर इवन चेक कर रहे हैं तो इवन पॉइंटर के नाम से फंक्शन है। फंक्शन रिटर्न्स द सिंबल ट्रू if its argument is an even number, otherwise it returns a symbol false। Simply even हम इसमें कोई argument enter करते हैं और वो देखते हैं, चेक करते हैं कि वो even है या नहीं। हम even इसके अंदर कोई वेरिएबल भी रख सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि फिक्स वैल्यूज़ हों, जो यूज़र हमें इनपुट दे रहा है उनको हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। The odd p function returns the symbol true if its argument is an odd number, otherwise it returns a symbol false। सेम इसी तरह हमारे पास odd p के नाम से फंक्शन है और वो भी odd वैल्यूज चेक करता है कि क्या वो odd हैं कि नहीं। अब हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस and और not के। The and function returns the symbol true if each of its argument evaluates to be true, otherwise it returns the symbol false। Each argument of the function is evaluated from left to right। If any argument evaluates to false, then the symbol false is immediately returned by the function। हम इसमें करते क्या हैं एंड फंक्शन में कि हम जो भी इसके साथ सिंबल्स होंगे उन सब को आपस में वो कंपेयर करें। अगर तो वो ठीक है, सारे रिज़ल्ट जो हैं वो ट्रू दे रहे हैं, तो फिर एट द एंड ट्रू रिटर्न होगा। लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स है तो वो वहाँ से रिटर्न होकर फॉल्स कर देगा। तो सिंपली एवैल्यूएशन है, हम एंड को यूज़ करते हैं, लॉजिकल फंक्शन है हमारे पास, और इस तरह हमारे पास और फंक्शन है, वो भी लॉजिकल सिंबल है। इसमें भी हमारे पास हम ये रिटर्न देखते हैं कि क्या ये ट्रू रिटर्न करता है
या फॉल्स रिटर्न करता है। और फंक्शन रिटर्न्स द सिंबल ट्रू इफ एनी ऑफ इट्स आर्गुमेंट इवैल्यूएट्स टू ट्रू, otherwise it returns the symbol false. Each argument of the function is evaluated from left to right. If any argument evaluates to true, then the symbol true is immediately returned by the function. अब और जो है वो हमारे पास सारे के सारे वही काम करेगा जो हम नॉर्मली सी में यूज़ करते हैं, और जो लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोई एक भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो हमारे अपने डिपेंडेंट है हमारे फंक्शनैलिटी के ऊपर। द नॉट फंक्शन रिटर्न्स द सिंबल ट्रू इफ इट्स आर्गुमेंट इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, अदरवाइज इट रिटर्न्स द सिंबल फॉल्स। अब हमारे पास नॉट फंक्शन क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा जब भी कोई उसके जो सिंबल्स हैं वो अवेलेबल हों। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ छोटे से एग्जांपल्स हैं, हम इसको सिंपली ट्राई करते हैं कि ये किस तरह काम करेंगे। हम क्लिप्स की तरफ जाते हैं। हम क्लियर कर देंगे और अब हम देखते हैं कि अगर हम इक्वल का साइन चेक करना चाहते हैं, जो हमने चेक किया था हम पहले साइन लगा देंगे क्योंकि फंक्शन है। फंक्शन के बाद हम उसको वैल्यूज़ दे देंगे। हम दे देते हैं 3.0 और फिर हम फंक्शन क्लोज करते हैं, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। हमारे पास ट्रू आता है। तो ट्रू का मतलब ये कि क्योंकि ये टाइप चेक नहीं कर रहा, साथ ये सिंपली उसके मैग्नीट्यूड को चेक कर रहा है, और मैग्नीट्यूड यहाँ पर 3 और 3 दोनों सेम है, इस वजह से वो इक्वलिटी आ रही है। लेकिन अगर हम इसमें EQ और फिर हम देखते हैं 3 और 3.0, इस सिचुएशन में हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 3 और 3.0 में टाइप का डिफरेंस है। अब टाइप के डिफरेंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है। और जब भी हमारे पास हम ये चेक करना चाहें कि टाइप कौन से है, तो इस सिचुएशन में या ये देखना चाहें कि क्या टाइप जो है वो मैटर करता है कि नहीं, तो उस सिचुएशन में हम EQ वाला साइन यूज़ करेंगे। सेम इस तरह हम अगर लेस देन का साइन यूज़ करते हैं तो ये करेगा क्या कि ये ट्रू इसने रिटर्न इस वजह से किया कि हमारे पास लेस देन है 4 और 5 के। हम अगर इसमें कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो हमारे पास एरर आ जाएगा और वो बताएगा हमें कि आर्गुमेंट्स नंबर 2 जो है वो या इंटीजर होना चाहिए या वो फ्लोटिंग वैल्यू होनी चाहिए। अब क्योंकि ये जो फंक्शन है लेस देन का, ये अरिथमेटिक है, सिर्फ नंबर इसके साथ एज आर्गुमेंट जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस हेल्प में बताया गया कि फंक्शन लेस देन एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट नंबर 2 टू बी अ टाइप ऑफ इंटीजर और फ्लोट। तो हमने ये भी देखा कि हमें एरर आ जाएगा अगर तो हम कोई नॉन करेक्टर वैल्यू देते हैं। अब हम देखेंगे तो ये हमारे पास लेस देन है और इक्वल का साइन तो काम नहीं करेगा, लेकिन लेस देन है इस वजह से ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। हम और देखते हैं कि हम कौन कौन से फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। नॉट इक्वल वाला हम यूज़ देखते हैं। नॉट इक्वल अब हमने यहाँ पर ये देखा कि क्या ये नॉट इक्वल है, तो फू टू ओ बी जो जितने भी हमने
सिंबल्स दिए, तो वो ट्रू इस वजह से किया कि ये नॉट इक्वल हैं। अगर तो हम यहाँ पर सिंपल इक्वल का साइन लगाते हैं तो इस सिचुएशन में वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये डिफरेंट है। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं, साथ में हम यहाँ पर साथ में ये चेक करना चाहते हैं कि क्या कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हम इसमें दे सकते हैं कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा हूँ और साथ में नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये भी कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि मेरे पास फॉल्स रिटर्न हो रहा है, क्योंकि ये हम टाइप भी साथ चेक कर रहे हैं। इसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा और वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और उनकी कंपैरिजन आपस में चेक की जाती है। अब अगर हम इक्वलिटी के केस में देखना चाहते हैं कि क्या ये इक्वल हैं, हम सिंपल इसको चेक करेंगे तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इनका टाइप भी सेम है और इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, एक ही एक टाइप के कैरेक्टर्स हैं एग्जैक्टली। तो इस वजह से उसमें भी फ़र्क नहीं, तो ये हमारे पास सेम ही रिटर्न करेगा। अब हम साथ में ये देख रहे हैं कि अगर तो हम पूरा फंक्शन बनाते हैं जो वैल्यूज़ ले एज अ आर्गुमेंट, और फिर उसको हम चेक कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे होगा। हम सिंपली हमारे पास पहले से है फंक्शन, हम उसको कॉल करते हैं, रीड करते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, हम दो वैल्यूज़ ले सकते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं, हमने कॉपी किया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एक हम यूज़र को बताते हैं कि इंटर इनपुट वैल्यू 1, और उसको हम कोई v1 वेरिएबल में सेव करते हैं। फिर हम इनपुट वैल्यू 2 करते हैं, और वो हमारे पास आएगी किस में, v2 के अंदर। अब हम इसके बाद सिंपल हम इसको प्रिंट बल्कि हमें प्रिंट नहीं, इस तरह नहीं प्रिंट करते, हम सिंपल उसके साथ कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन में हम ये करेंगे कि हम उसके अंदर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं कोई ऑपरेटर। क्योंकि ये वेरिएबल हैं, इस वजह से हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये हम अब चेक करेंगे कि क्या लेस देन है या नहीं।
first value is हम यहाँ पर सिंपल ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है क्या वो सेकंड वैल्यू से लेस है कि नहीं। हम सिंपल सा प्रोग्राम इसका बना दिया हमने। अब हम करेंगे ये कि इंटर करके इस रूल को बनाते हैं। अब हमारे पास ये रूल बन गया। हम अब देखते हैं कि हम इसको रन करते हैं तो 3 इंटर किया और हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है हमने 4 इंटर किया तो 4 यहाँ पर हमने CRLF इसके बाद नहीं लगाया इस वजह से द फर्स्ट वैल्यू इज़ लेस देन द सेकंड वैल्यू। तो रिज़ल्ट क्या आया? ट्रू। इस सिचुएशन में ट्रू आया। हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर दोबारा इसको रन करेंगे लेकिन उससे पहले हमें रीसेट करना होगा। हमने रीसेट किया। अब रन करते हैं। रन करने के बाद हम वैल्यू देते हैं 6 और फिर हम वैल्यू देते हैं 3। अब ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। ये कंबाइन आ रहा है। यहाँ पर हम CRLF यूज़ करेंगे तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ये सिंपल से हम इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। आप कैलकुलेटर बना सकते हैं कंप्लीट जिसमें हम बहुत सारे वैल्यूज़ इंटर करें और उनकी एडिशन बेसिक अरिथमेटिक्स कर सकते हैं। और हम जो कोई लॉजिकल प्रोग्राम बना सकते हैं जो गेम की फॉर्म में होगा। आपको इस तरह के छोटे छोटे असाइनमेंट्स मिलेंगे जिस पे आप कोडिंग की एग्जांपल्स कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम लेक्चर की तरफ जाते हैं और आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। आज हमने सीखा रीड लाइन फंक्शन के हम किस तरह पूरे लाइन को रीड करते हैं, उनको कैसे एज स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं। फिर हमने ये सीखा कि जब हम असर्ट करते हैं स्ट्रिंग को तो उसके साथ हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। तो हम फिर उसको एज अ फैक्ट ले सकते हैं। इस वजह से जब हम रीड लाइन करते हैं तो वो पैरेंथेसिस हमें साथ एडजस्ट करनी पड़ती हैं। इसके बाद हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे, इक्वल, नॉट इक्वल, एंड, और ये सारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो लेफ़्ट हैंड साइड है उस पे हम ये चेक्स लगा सकते हैं। राइट हैंड साइड पे भी लगा सकते हैं, वहाँ भी हम देख सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट पे हम कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली वहाँ पर हम वो वाले फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि फंक्शंस बहुत सारे हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं। तो उस पर आप जब काम कर रहे होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप सिंपली एग्जैक्टली सेम चीज़ गूगल में सर्च करें तो आपको उसके मुतालिक हेल्प मिल जाएगी। साथ में क्लिप्स लिखना ना भूलिएगा क्योंकि अगर आप रैंडम फंक्शन सर्च करते हैं तो आपको सी के और लैंग्वेजेस के हेल्प मिल जाएंगे, लेकिन जब आप साथ में क्लिप्स लिखेंगे तो एग्जैक्टली क्लिप्स के हेल्प आपको मिल जाएगी। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे और हम कुछ चीज़ें फाइनलाइज करेंगे क्लिप्स के लिहाज से। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।